interesting facts about mathematics. Srinivas Ramanujan, an Indian mathematician who changed the future of maths. Our former Prime Minister Shri Manmohan Singh ji announced 22nd December as National Mathematics Day in order to commemorate the contribution of Ramanujan in the field of maths. Well, Ramanujan never really received formal education of maths. Instead, he was born genius with the advantage of maths. He could quickly solve the most toughest question within few minutes. By the age of 12, he had mastered trigonometry and had developed many theorems for us. His life was really difficult, which gave us an inspiration. And by now, he has become one of the successful mathematicians of all times. Friends, math is such type of subject that if somebody understands it, it becomes really easy for them. Everything becomes so fun. On the other hand, there are some people for whom math is just like a nightmare. It just went out from the top of their head. If you are the one facing this problem, then hold on, my friend. Pull it back together, understand it better, and don't let it go. Everything around us or everything in this world, it's just maths. If you observe, then everything which surrounds us is just maths. Let us understand it with an example. If I ask you, how many times do you all see your watch daily? Of course, the answer will be many times. Or if I ask you, can you imagine shopping without mathematics? Of course, the answer will be no, we can't. Because we need maths to calculate currency. So my conclusion is that mathematics is a universal language which we all should know. On the final note, I want to pay my tribute to Srinivas Ramanujan for his contribution in mathematics and the inspiration he gave us. I would like to conclude my speech with a positive quote. That is, life is just like a math equation. Life is just like a math equation. In order to gain more, you have to know how to convert negatives into positives. Thank you all. Have a good day
देशवासियों जी और मेरे प्रिय मित्र और मेरे सबसे चहेते विज्ञान के क्षेत्र के मजबूत स्तंभ डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, आप सभी का स्कूल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से, क्योंकि एक प्रधानाचार्य होने के नाते मैं जानता हूं कि एक शिक्षक का कितना मुश्किल होता है अपने मैनेजमेंट को समझाना और फिर वहां से निकलकर आना और समय देना। आज विद्यालय में हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मना रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे दिन होते हैं, अर्थ डे, एनवायरमेंटल डे, मदर्स डे, फादर्स डे। एज इंपॉर्टेंट एज दिस डे इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे। Mathematics is a subject which is as equal to the math, science. For some students, it is the most easiest subject because they hate learning. And for some students, not some students, for most other students, it is the toughest subject. ज्यादातर को बोलते हैं कि सिर के ऊपर से जा रहा है। और मैथ्स ही एक ऐसा विषय है जो विद्यालय में पढ़ाने के बावजूद सबसे ज्यादा ट्यूशन में पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इसके लिए इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए। कोई व्यक्ति बताने वाला हो कि फॉर्मूला कैसे हुआ और उससे सवाल कैसे निकलेगा। As I have said number of times to the teachers, solution of the problem is not important. The main thing is how to derive the formula, how you have to learn from where this formula has come. पाइथागोरस थ्योरम मैंने बहुत बार देखी है, बहुत बार पढ़ी है, सब पता है कि बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दोनों का सम मिलाकर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन मैंने पहली बार अपने स्कूल में एक बच्चे ने एक मॉडल बनाया है और सर उसने हाइपोटेन्यूज की लंबाई का स्क्वायर बनाकर उसमें रेत भरा है, और जब उस रेत को वो खाली करता है तो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर से वो रेत भर जाता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कौन बच्चा जरा खड़े हो? हाँ सर, जब आप देखेंगे तो रियल में हाउ टू कोरिलेट द मैथमेटिकल प्रॉब्लम विद द रियल लाइफ सिचुएशन। प्रोफेसर साहब ने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही है तत्व कि हमको अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना है हमारे पढ़ाई को। नाउ देयर इज नो स्पेस फॉर मगिंग, only you have to understand the concepts.
आज ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की तरफ से श्रीनिवासन रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर विद्यालय के क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक के बच्चों द्वारा मैथमेटिक्स में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कैसे हम सामान्य विषय वस्तुओं से लेकर जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं उनको हम स्थापित कर सकते हैं। यह सरल भाषा में एक समझाने का प्रयास बच्चों ने किया है। मैं पूरे विद्यालय परिवार को और सारे छात्र छात्राओं को उनको बधाई और अभिनंदन करता हूँ कि इस प्रकार का अभिनव और अद्भुत प्रयास उन लोगों ने किया है। निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं में जो गणित और विज्ञान वह छिपा था, आज वह हमारे आज के समय में, वर्तमान में वह छात्रों के बीच में उतरने का काम कर रहा है। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे सिद्धांत जो ये तय करते थे कि केवल इंग्लिश पीरियड में ही आए, वो ये बताते थे कि केवल अंग्रेजों ने ही उन फॉर्मूलों का या ग्रीक ने ही उन फॉर्मूलों का आविष्कार किया, वह तथ्यों को आज झुटलाया जा रहा है। और जो वास्तविक इतिहास है भारत का, उस वास्तविक इतिहास को आज बच्चे अपने समाज जीवन में उतार रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से जो हमारे आर्यभट्ट हों, चाहे पणिनि हो, या तमाम जो हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र के ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से और सारे इन चीज़ों को आविष्कृत किया था, वह सब लोग आज छात्रों के जीवन में उन्हें समझ में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या नाम है सर आपका? मैं श्याम कुंते, प्रिंसिपल हूँ ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में। आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया है स्कूल में? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है और इस दिन श्रीनिवास रामानुजन का बर्थडे है। विद्यालय ने 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारी की, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। मैथ्स से रिलेटेड मैथ्स ओलंपियाड हुआ, मैथ्स क्विज कॉम्पिटिशन हुआ, और आज मैथ्स के फॉर्मूलेज को कैसे हम मॉडल के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। विज्ञान के मॉडल तो बनते हैं, लेकिन मैथ्स की थ्योरम्स कैसे प्रूव हो मॉडल के द्वारा, ये आज एक प्रयास हमने किया है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने MLCs का, मानवेंद्र जी और श्री शिवपाल सिंह जी और एम्स आए हुए प्रोफेसर्स, GIC के प्रोफेसर्स, कि आज वो विद्यालय में बच्चों के बीच में बच्चों से बात करेंगे मॉडल्स को लेकर, और क्या वो तरीका है कि हम गणित को आसान बनाएं और रुचिकर विषय बनाएं। ये हमारा प्रयास है कि बच्चे मैथ्स को एक रुचिकर विषय के रूप में लें। ये हम लोगों का प्रयास है स्कूल में। क्या इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी आयोजित करने का आपका उद्देश्य है? निश्चित बिल्कुल ही, क्योंकि हम जो नई शिक्षा नीति बन रही है, उस नई शिक्षा नीति में विषय का जो बोझ है उसको कम करना और विषय को अपने आम जीवन के साथ कोरिलेट करना, उसको आसान बनाना, उसको समझ के करना, ये मुख्य उद्देश्य है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। और हम निश्चित तौर पर आगे आने वाले टाइम में इस तरह के प्रयास और अच्छे और परिष्कृत रूप में करेंगे।